Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing well. We are going to start next video lesson number 5. Today we will complete the remaining branches of biology at book page number 7 to 8. The objectives of our video lesson, students will be able to understand the topic and its scope. Paleontology is that branch of biology in which we study about fossil. And what is fossil? Fossil are the remains of plants and animals that were preserved in rocks and other geological formation. जियो का वर्ड यूज़ होता है अर्थ के लिए, और अर्थ के अंदर जितनी भी प्रोसेस हैं या किसी चीज़ की भी फॉर्मेशन है दैट आर कॉल्ड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. फॉसिल्स को सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है, after the death of animals and plants almost 10,000 years old, they were buried in soil and form rocks. They are called fossils. Scope of paleontology: the examination of fossil helps scientists to know the evolutionary history of organism. What is evolutionary history? The story of how a living organism, plant, animal or human has changed and developed over a long period of time. For example, early horses were small, means के dog size. Nowadays and over time period they become larger and faster. Another example of a fossil is dinosaur fossil. Dinosaur fossil provide evidence of giant reptiles that roamed the earth millions of years ago. Giant mean big, reptiles mean जो ज़मीन जैसे क्रोकोडाइल है, तो डायनासोर से के फॉसिल से वो रेप्टाइल्स जो हैं वो अपीयर हुए, जिसे हम कहते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. Another branch of biology is taxonomy. Taxonomy is that branch of biology that deals with the classification of organisms into groups and subgroup on the basis of similarity and differences. टेक्सोनमी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था ग्रुप्स और सब ग्रुप. किसकी बेसिस पे किया था? सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बेसिस में. क्यों? क्योंकि इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म थे और उनको एक स्टडी करना पॉसिबल नहीं था. तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो एक ही करेक्टरिस्टिक्स के ऑर्गेनिज्म थे उनको एक ग्रुप में रखा. और जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स के अंदर ये एबिलिटी है कि उनके अंदर सेल वॉल भी होती है और फोटोसिंथेसिस, उनको एक ग्रुप में रख दिया. अब जैसे एनिमल्स हैं तो एनिमल्स के अंदर ना फोटोसिंथेसिस होता है और ना सेल वॉल होती है, तो उनको एक ग्रुप में रख दिया. इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप रख दिया. तो इसकी बेसिस पे उन्होंने टैक्सोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया. स्कोप ऑफ टैक्सोनॉमी: classification of organism helps to organize and understand the diversity of life, identify new species, and study evolutionary relationship. Ecology, also known as environmental biology, the branch of biology that deals with the relationship between organism and their environment, known as ecology. ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप और एनवायरनमेंट के दरमियान में और एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिज्म के दरमियान में की रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी. द स्कोप ऑफ इकोलॉजी: ecology helps to conserve biodiversity and address environmental problems. The food chain, for instance, illustrates the interconnected of organism for energy and nutrient. Biodiversity में variety of organism. तो ecology जो है वो biodiversity को conserve करने के लिए भी help करता है. इसके अलावा environmental problems को भी solve करेगा. For example, land pollution है, air pollution है, water pollution है. इसके अलावा फूड चेन, जिससे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, उससे एनर्जी भी लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं. फॉर एग्जांपल, ग्रास ऊपर ग्रास ईट करेगा और ग्रास ऊपर को फिर कोई और ईट करेगा. तो इस तरह ये एक चेन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है. मीन कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं. किस पर्पज़ के लिए? न्यूट्रिएंट्स. और न्यूट्रिएंट्स से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है.
Marine biology is that branch of biology that deals with the study of life in ocean. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ओशन के अंदर सी के अंदर रहते हैं उनकी स्टडी को कहते हैं मेरीन बायोलॉजी. व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ मेरीन बायोलॉजी? इट हेल्प टू अंडरस्टैंड ocean biodiversity, discover new species एंड एड्रेस मेरीन कंजर्वेशन इशू. मेरीन बायोलॉजी ओशन के अंदर बायोडाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करती है. इसके अलावा कोई न्यू स्पीशीज डिस्कवर होती है तो उसको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है. इसके अलावा जितने भी मेरीन इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी इन्वॉल्व है. फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर पोल्यूशन जिससे मेरीन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ख़तरा है उसको सॉल्व करने के लिए मेरीन बायोलॉजी इन्वॉल्व है. फॉर एग्ज़ाम्पल coral reefs support a wide variety of marine life. Mean coral reefs are home to many different sea animals and plants. आपने समंदर के अंदर देखा होगा ओशंस के अंदर देखा माउंटेन्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. वो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कोरल रीफ जिसके अंदर बहुत से एनिमल्स एंड प्लांट्स रहते हैं. Pathology is another branch of biology in which we study about diseases, their causes and effect. इस ब्रांच में हम diseases से रिलेटेड पढ़ते हैं. डिजीज़ किस वजह से हुई, क्या अफेक्ट करती है और क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं. व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पैथोलॉजी? पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीजेस डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट. पैथोलॉजी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करती है. इसके साथ साथ प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में भी इन्वॉल्व है. प्रिवेंशन बिफोर डिजीज़ होती है और ट्रीटमेंट आफ्टर डिजीज़ होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल पैथोलॉजिस्ट स्टडीज़ हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स काजेस कैंसर. पैथोलॉजिस्ट मीन हु स्टडी पैथोलॉजी. प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल डिवीजन को डिस्कस किया था. सेल डिवीजन की दो टाइप्स हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, जिसमें सेल डिवाइड होते हैं. अगर जीन्स के अंदर कोई चेंजेस आते हैं तो ये जो डिवीजन जो है वो एबनॉर्मल होगी या अनकंट्रोलेबल भी, जिसकी वजह से जो है सेल्स के अंदर कैंसर काज हो सकते हैं क्योंकि उनकी डिवीजन जो है वो नॉर्मल नहीं होती बल्कि एबनॉर्मल. अगर 2 सेल्स बनने चाहिए तो 2 सेल की जगह 3 बन जाएंगे, तो ये एबनॉर्मल डिवीजन. Immunology is another branch of biology that deals with the study of components of the immune system and their role against diseases. इस ब्रांच में immune system के components और उनका रोल against different diseases से related हम study करते हैं. What are the components of immune system? Components of immune system mean different parts of the body like cells, tissue and organ that work together against germs and protect us from diseases. And what is the scope of immunology? Immunologists study to develop vaccine, treat autoimmune diseases and improve responses to infection. What is immunologist? Immunologist means to study immunology. And what is vaccine? Vaccine are the substances that protect us from diseases and build immunity. जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस आया तो उसकी वैक्सीनेशन करवाई गई थी. तो वैक्सीन क्या है, वो एक सब्सटेंस है और प्रोसेस को क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन. And what is autoimmune diseases? Autoimmune diseases are those diseases the body fight itself instead of germs. Pharmacology is another branch of biology in which we study about drugs and their effects on the body. This helps in the development of new drugs. What is drug? A chemical that affects health, body or mind. There are two types of drug, medicinal drug and addictive drug. Medicinal drug में किसी भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी प्रिवेंशन की जाती है और ट्रीटमेंट की जाए. फॉर एग्जांपल पेनाडोल, एस्पिरिन. एडिक्टिव ड्रग वो ड्रग जिसमें पर्सन डिपेंड करता है उस ड्रग के ऊपर. फॉर एग्जांपल नारकोटिक्स. Another example, new antibiotics are developed that are used to kill bacteria and treat bacterial infection.
एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स आर दोज विच किल द बैक्टीरिया और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें या तो बैक्टीरिया को किल किया जाता है एंटीबायोटिक्स की मदद से, या तो जहाँ पे जो बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन फैलाया होता है उस इन्फेक्शन या ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप की एंटीबायोटिक्स हैं जो हम फार्माकोलॉजी की फील्ड में यूज़ किए जाते हैं। नाउ ओपन योर बुक। यहाँ पे डेट राइट करें 27/3/26, डे फ्राइडे है और आज हमारा क्लास वर्क का पार्ट क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक पैलेंटोलॉजी की डेफिनेशन है। यहाँ पे आप स्कोप या इम्पोर्टेंस की हेडिंग दे सकते हैं, वो यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट साइड बॉक्स है जिसमें वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी पूछे। यहाँ पे डिफाइन फॉसिल है, साथ उसकी एग्जांपल है। यहाँ पे 3.5 बिलियन जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और कौन सा ओल्ड फॉसिल्स है? साइनोबैक्टीरियम, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इसी तरह टेक्सोनोमी की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ डिफरेंसेस तक है। उसके बाद स्कोप या इम्पोर्टेंस की आपने हेडिंग देनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक राइट करें। पेज टर्न करें। यहाँ पे इकोलॉजी की डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ तक। यहाँ पे आपने स्कोप राइट करना है और यहाँ तक इसका आ जाएगी। इसी तरह मेरीन बायोलॉजी की यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन है, ये स्कोप है और ये फॉर एग्जांपल की आपने हेडिंग देनी है। इसी तरह पैथोलॉजी की आपने डेफिनेशन लिखनी है, ये फॉर एग्जांपल आएगा। इसी तरह इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन प्लस स्कोप और इम्पोर्टेंस। फार्माकोलॉजी डेफिनेशन फॉर एग्ज़ाम्पल। ये था आज का लेक्चर। आपने इसको लर्न करना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्लस ऑब्जेक्टिव के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।